students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our EVS new chapter, that is chapter number 11, Buildings and Bridges. Chapter number 11, Building and Bridges. First of all, let's fill in activity. Name the following. First one is he ensures that the building is constructed properly. The engineer does that. Then he makes the plan of the house. The answer is architect. He fixes the taps and pipes in the house. The answer is plumber. He does the woodwork of the house. The answer is carpenter. He fixes the electric connections in the house. The answer is electrician. He lays the walls and roofs of the house. The answer is mason. Now look around on your way to school. You will see houses, roads, drains, walls, bridges and footpaths. What are they made of? तो जब आप अपने स्कूल जाओ, आप रास्ते में नोटिस करना, आपको वॉल्स दिखेंगी, रूफ्स दिखेंगी, अलग अलग घर दिखेंगे, ब्रिजेस दिखेंगे, है ना? तो वो सब चीज़ें किसकी बनी होती है? The process of construction involves planning as well as selection of suitable piece of land and choosing appropriate building materials. तो कंस्ट्रक्शन में पहले तो हम एक अच्छी जगह चूज करते हैं और फिर अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. It also requires the service of both skilled and unskilled workforce. और इसमें skilled workforce जैसे कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट ये सब लगते हैं और unskilled जैसे कि मेसन, प्लम्बर ये सब भी लगते हैं. Then for the construction of building, materials like cement, sand, bricks, gravel, steel, wood and glass are used. तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड, इवन आयरन, मेटल्स ये सब भी चाहिए होते हैं. Then bricks are the most common material used in building houses. तो ब्रिक्स सबसे कॉमन मटेरियल है घर को बिल्ड करने के लिए. They have been used for hundreds of years. और वो कम से कम 100 सालों से भी ज़्यादा से यूज़ होते आ रहे हैं. They are rectangular in shape and made of clay. तो ये शेप में कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर, और ये क्ले से बने होते हैं. They are usually red in color and quite heavy. तो ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं और हेवी होते हैं. Clay, which is kind of sticky soil, is first softened with water. तो clay जो कि एक sticky soil होती है उसको पहले water डाल के soft किया जाता है. Then it is put into a mold to give a proper shape and size. इसको बाद में फिर mold में डाला जाता है इसको proper shape और size देने के लिए. brick के size के molds पहले से ही ready किए जाते हैं. Bricks are dried in the sun and then baked in a kiln. So they become hard and strong. तो bricks को पहले हम dry करते हैं sun में और उसके बाद हम उसको bake करते हैं एक kiln में. Unfortunately, brick making leads to heavy pollution and severely affect the health of kiln workers. तो ब्रिक बनाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और जो वर्कर्स इनमें काम करते हैं फैक्ट्रीज में उनकी हेल्थ पे इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. Bricks are laid on top of another to make a wall and are stuck together with cement. तो ब्रिक्स को हम लगाते हैं एक के बाद एक वॉल बना लेते हैं और उसको साथ में हम स्टिक कर देते हैं. It is then covered with plaster and paint. तो सीमेंट से इसको स्टिक करने के बाद हम इसके ऊपर प्लास्टर करते हैं फिर पेंट. To construct any house or building, first of all a design or plan has to be made. तो कोई भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ता है कि बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है. तो an architect designs or makes the plan of a house which has to be approved by the town planners. तो आर्किटेक्ट पहले एक डिज़ाइन बनाता है जो कि टाउन प्लानर्स बाद में अप्रूव करते हैं. Engineer design the foundation and ensure that the building is constructed properly. तो इंजीनियर जो है वो फाउंडेशन का ध्यान रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग जो है प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट हो रही है या नहीं. मेसन्स एंड लेबरर्स कंस्ट्रक्ट द हाउस. उसके बाद मेसन्स और लेबरर्स इस घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. A plumber fixes the water taps and pipes. एक प्लम्बर आता है जो हमारे घर में पाइप्स और टैप्स को फिक्स करता है. An electrician installs the electrical wiring and lighting. तो एक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल वायरिंग और लाइटिंग को आके इंस्टॉल करता है हमारे घर में. हमारे घर में वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देता है. वेल्डर्स ज्वाइन द डोर्स एंड विंडोज एक्सेट्रा. तो वेल्डर्स डोर्स और विंडोज को ज्वाइन करते हैं.
The glass fitters and painters and interior designer make the inside of the house beautiful. तो जो ग्लास फिट करने वाले होते हैं कट तो जो ग्लास फिट करने वाले होते हैं, पेंटर होते हैं और इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, वो हमारे घर को अंदर से सुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिजेस। A bridge is a structure built to surmount physical obstacles such as a body of water, valley और busy road। तो ब्रिज हम बनाते हैं किसी ऐसी चीज से बचने के लिए जो बहुत बिजी है, जैसे कि कोई बिजी रोड हो गई या वाटर हो गई, कोई वैली हो गई, तो हम उसके ऊपर ब्रिज बना देते हैं ताकि हम इजिली उस जगह को क्रॉस कर सकें। इट इज मेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पैसेज ओवर द ऑब्स्टेकल्स, यानी कि हम पैसेज प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर। ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड टू हेल्प पीपल क्रॉस लेक्स, रिवर्स, वैलीज, रेलवे ट्रैक्स एंड बिजी रोड्स। तो इससे हम लेक्स, रिवर्स, वैलीज, बिजी रोड और रेलवे ट्रैक्स को इजीली क्रॉस कर पाते हैं। ब्रिजेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। द मेन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर, तो ब्रिजेस अलग अलग तरीके के होते हैं, पढ़ते हैं उनको। सबसे पहला है बीम ब्रिज। इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ब्रिज इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबसे सिंपल होता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय लेइंग हॉरिजॉन्टल बीम्स ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट सपोर्टेड बाय पिलर्स। जिसमें हम स्टील और कॉन्क्रीट की बीम बनाते हैं जो कि पिलर सपोर्ट करता है। लॉन्गर द ब्रिज, लॉन्गर इज द नंबर ऑफ पिलर्स। तो जितना बड़ा ब्रिज होगा उसमें पिलर्स भी उतने ज्यादा बनाने पड़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ राइट में पिक्चर में देख सकते हो। उसके बाद आता है कैंटिलेवर ब्रिज। इट इज सपोर्टेड बाय ओनली बीम्स एट द टू अपोजिट एंड्स। तो इसमें जो बीम होती है वो दो अपोजिट एंड में होती है, बस वही इसको सपोर्ट करती है। द बीम्स आर कॉल्ड कैंटिलेवर्स। तो इन बीम्स को हम बोलते हैं कैंटिलेवर्स। A beam joins the two cantilevers in the middle। तो बीम क्या करती है, दो कैंटिलेवर्स को बीच में से ज्वाइन करती है। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द बीम ब्रिज। तो ये बीम ब्रिज की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जैसे कि आप लेफ्ट में पिक्चर में देख सकते हो। तो होरा ब्रिज इन कोलकाता इज अ कैंटिलेवर ब्रिज। तो होरा ब्रिज जो कि कोलकाता में है वो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन ब्रिज। इट इज हंग और सस्पेंडेड बिटवीन टू हाई पॉइंट्स विथ स्टील केबल्स दैट पास ओवर टार्स। तो ये हंग किया जाता है, यानी कि इसको लटकाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और दो हाई पॉइंट के बीच में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ दो हाई पॉइंट्स हैं जिसके बीच में इसको लटकाया गया है और ये किसी टावर से पास कर रहा है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ब्रिज जो है वो सस्पेंड है, यानी कि लटकाया गया है कुछ केबल से जो कि एक टावर से पास हो रहे हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल बट आर नॉट सूटेड फॉर रोड और रेल ट्रैफिक। तो ये वैसे तो फ्लेक्सिबल हैं पर रोड और रेल ट्रैफिक के लिए सूटेबल नहीं है। लक्ष्मण झूला एट हरिद्वार इज अ सस्पेंशन ब्रिज। तो लक्ष्मण झूला जो हरिद्वार में है वो एक सस्पेंशन ब्रिज है। देन आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज इज शेप लाइक एन आर्क एंड इज मेड ऑफ स्टील, कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स। तो आर्क ब्रिज एक आर्क की तरह है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, जैसे एक आर्क होती है और ये स्टील, कॉन्क्रीट और ब्रिक्स का बना है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजाइन ऑफ ब्रिजेस। और ये ब्रिजेस का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजाइन है, यानी कि पहले के टाइम से हम ये डिजाइन यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉब्रिज। Drawbridge have roadway that can be moved entirely or partially to give enough space for high or large ships to sail through। तो ये ब्रिज ऐसे तरीके से बनाया जाता है जिससे इजीली बड़ी बड़ी शिप्स इसके नीचे से निकल जाएं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसको ऐसे बनाया गया है कि शिप इसके बीच में से इजीली पास हो जाए। ब्रिजेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ब्रिजेस हम हजारों साल से बनाते हुए आ रहे हैं। The method, the style, materials and techniques have changed but the basic idea and purpose of building a bridge have remained the same। तो अब हमारा ब्रिज बनाने का स्टाइल, मेथड सब चेंज हो गया है पर उसका पर्पस अभी भी वही है जो पहले टाइम पे था। नाउ फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड ओवर दीज 5 फेमस रिवर्स इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया में इन रिवर्स के ऊपर कौन सा ब्रिज बना हुआ है। तो इसमें फर्स्ट है गंगा। गंगा के ऊपर है हमारा होरा ब्रिज। देन यमुना सिग्नेचर ब्रिज। देन हुगली विद्यासागर सेतु। ब्रह्मपुत्र, देन ब्रह्मपुत्र बोगीबील ब्रिज। एंड देन नर्मदा सरदार सरोवर ब्रिज।
Fine. Now exercise. Tick the correct option to construct a building. First, this needs to be made. Plan, door, या entrance. The answer is plan. These were the oldest design in the bridges. Arc, fallen, या beam. The answer is arc bridges. Next is he makes the house beautiful. Cleaner, interior designer, या plumber. The answer is designer. Then fill in the blanks and dash makes the design of a house. The answer is an architect. Dash bridge is the simplest kind of bridge in terms of its structure. Answer is beam bridge. Lakshman Jhula at Dash is a suspension bridge. The answer is Haridwar. Then Dash bridge is supported by beams of the two opposite ends. The answer is cantilever. Bridges are being constructed since thousands of years. Fine. Next is true false. Builder join the doors and windows. This is true. Bricks are circular in shape and made of clay. This is false. To construct any house or building, first of all, its design or the plan has to be made. This is true. Arc bridge is shaped like an arc. This is true. Bridges are of one type only. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.